Hello everyone, Namaskaram, greetings from Seattle Checker. As we all know that in the previous few days, we have started a new series on Nehru and his history writing. And in the previous videos, I've told about that why Nehru has chosen history in spite of the fact that he was not an academic person, he was not a professional historian, and either he was coming from a background with social sciences or particularly history as his area of study. He was a natural science student and still he had a lot of interest in the history. And in the second video in this series, we have seen that how Nehru looks at history, what was his perspective towards history. That means we covered on various aspects like what was the uh, purpose of writing history, इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, किस तरह से हमें इतिहास को समझना है, भारत के इतिहास को समझने के लिए कैसे उसे विश्व इतिहास के कड़ियों को जोड़ते हुए उसे देखने और समझने की आवश्यकता है। इन सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। Now today in the third video of the series, I'll be talking about Nehru's approach towards different isms, अलग अलग विचारधाराएं और उनके प्रति नेहरू की सोच, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि नेहरू ने जिस समय में ये किताबें लिखी जो कि इतिहास से संबंधित है और इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसा समय था जब पूंजीवाद चरम पर था और भारत जिस साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहा था वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का ही जन्म था। दूसरी तरफ मार्क्सवाद भी था जिससे नेहरू काफी प्रभावित नजर आते हैं। तो भारत में जो स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी वो इन दो विचारधाराओं के साथ एक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और इस तरह से हम बहुत तरह तरह की विचारधाराएं देखते हैं जिसमें हम कैपिटलिज्म देख रहे हैं, हम मार्क्सिज्म देख रहे हैं, हम सोशलिज्म देख रहे हैं और हम नेशनलिज्म देख रहे हैं। So in this third video of this series, I'll be talking about Nehru's approach and how he understands these four isms and what he thinks about it. Okay, so we'll be knowing about the approach of Nehru towards different isms. But before knowing that, I would just like to talk about his opinion regarding Indian civilization and what he says about religion or the what has been the role of religion in history और नेहरू इतिहास में धर्म की जो भूमिका है उसे किस रूप में देखते हैं, इन बातों पे चर्चा करते हुए उसके बाद फिर हम इज्म की भी बात करेंगे। नाउ जब नेहरू धर्म की बात करते हैं इतिहास में तो ही वॉज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। उनका जो अप्रोच था धर्म के प्रति ऐसा नहीं था कि वो धर्म के खिलाफ थे या किसी भी धार्मिक विचारधारा के खिलाफ थे, बट he accepted this fact that religion is very important for shaping the society. But on the other hand, he is also saying that it has played a role which it wasn't expected to play in history. यदि इतिहास में हम देखें तो धर्म के नाम पे जितने कत्ल हुए हैं, जितने अपराध हुए हैं, उतना अपराध और किसी कारण से नहीं हुआ है और धर्म ने इतिहास में मनुष्य की मानव सभ्यता का एक क्रूरतम चेहरे को दिखाया है। So he says that religion has been one of the important reason in history for brutality, and it has openly showed the brutal aspect of humankind. Here I have quoted one of the statement of Nehru, which is taken from his book Glimpses, as I've mentioned it here with the page number. It says that instead of bringing enlightenment to them, it has often tried to keep them in the track. Instead of broadening their minds, it has frequently made them narrow-minded and intolerant of others. While understanding the meaning, exact meaning of this quote,
we can understand that here Nehru is not basically against the religion, but the way religion has been used by others in history, उससे वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और अपनी इसी असंतुष्टता के कारण नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया अपनी उस बुक में, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिलीजन हैज सर्व्ड एज हैंडमेड इनटू पॉलिटिक्स एंड इम्पेरियलिज्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, पॉलिटिक्स भी इस्तेमाल किया है और इम्पेरियलिज्म भी इस्तेमाल किया। यानी वो केवल साम्राज्यवादी शासकों के लिए नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने धन का प्रयोग किया अपने साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए, बल्कि राजनीति में भी अलग अलग जगह उसका उपयोग किया जा रहा है। अब जब हम नेहरू के और फर्दर डीपली स्टडी करेंगे हम उनकी राइटिंग्स में, तो we'll see that towards the period of non-cooperation movement he started saying कि जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। और ये बात उन्होंने जेम्स मिल की जो बुक है उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है। हम जेम्स मिल की बुक देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, we'll see that in that book Mill has divided the whole of Indian history into 3 different periods। और उन्होंने उन पीरियड को जो नाम दिया है वो उन्होंने कहा है हिंदू हिस्ट्री, फिर उन्होंने कहा है मुस्लिम हिस्ट्री, एंड देन ही हैज सेड द ब्रिटिश हिस्ट्री। That means the division, the time division of Indian history into these different 3 periods is on communal lines। वो धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर इतिहास को पूरी तरह से बांट रहे हैं, जिसका कि नेहरू ने विरोध किया है, एंड ही हैज कॉल्ड इट डिसीटफुल। उन्होंने इस पूरे डिवीजन को डिसीटफुल माना है। और उनका कहना है कि हमें इतिहास को देखने का जो दृष्टिकोण है वो धर्म को लेकर के नहीं, बल्कि उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको परखना, समझना और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उसका ये एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो हमें ये इस रूप में उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने हिंदू लोगों को मारा, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जो आक्रमणकारी थे वो न केवल भारत में लूट कर रहे थे, बल्कि उन्होंने आतंक को ही एक माध्यम बना रखा था अपने देश में भी, और वो अपने देश में भी बहुत मर्सिलेसली शासन कर रहे थे, अपने प्रभाव को, अपने राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए और उसको विस्तार देने के लिए। So it should be seen in this way in history and not from communal eyes। भारत की सभ्यता के जब बारे में वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इंडिया बहुत सारे हिस्सों में हमें दिखाई देता है उस टाइम पीरियड में, but if we see it from cultural aspect, then this whole country is unified। हमारे यहाँ बहुत सारी भिन्नताएं हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके हैं जीवन यापन के, हमारे अलग अलग धर्म हैं, but from cultural point of view we all are united। और ये जितने भी बाहरी आक्रमण हुए, उस आक्रमण में जो हमारी पराजय है वो हमारी किसी कमजोरी के कारण नहीं है, हमारी सभ्यता की कमजोरी के कारण नहीं है। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो तब भी बहुत मजबूत था, वो आज भी बहुत मजबूत है, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ ग्रोथ, बिकॉज सिंस पास्ट टाइम्स वी हैव बीन इमिटेटिंग द सेम थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखें तो हमने कुछ नया नहीं किया, नए विचार नहीं आए, नए आइडियाज नहीं आए, नए काम नहीं हुए, उस दृष्टिकोण से हमने कोई विकास नहीं किया। उन्हीं चीजों को हम लेते आ रहे हैं और उन्हीं चीजों को दोबारा करते आ रहे हैं। तो एक तरह से हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं, एक ऐसे काम में पहुंच गए हैं जहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा और एकदम थम गया है विकास। और यही हमारी कमजोरी है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेडर्स को हमारे विरुद्ध सफलता मिली। Now come to the point which is the main theme of this video, and that is what was his approach towards differentism। So we'll start with capitalism, and I'm going to deal it chronologically। First I'll talk about capitalism, then socialism, then Marxism and nationalism will be taken hand in hand। अगर हम पूंजीवादी विचारधारा को देखें तो नेहरू ने हमेशा पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया। हम सब जानते हैं नेहरू का थोड़ा दृष्टिकोण समाजवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण था, उनका झुकाव उस तरफ था।
तो जब पूंजीवाद की बात आती है तो नेहरू अपने राइटिंग्स में पूंजीवाद का विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ी कमी है पूंजीवाद की वो ये है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मजबूत लोगों द्वारा या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा कमजोरों के निरंतर शोषण पर आधारित है. It is a system which is based on continuous exploitation of the weak by the strong, of the rulers by of the rules by the rulers. वो एक तरफ कैपिटलिज्म की अच्छी चीजों को भी देखते हैं. वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म, जहां तक उत्पादन की समस्या की बात है, वहां कैपिटलिज्म ने हमें एक समाधान दिया एंड इट इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. लेकिन ये कैपिटलिज्म से ही इंपेरियलिज्म निकल करके आया. वो कैसे निकल करके आया कि जब कैपिटलिज्म आया तो उसी के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जब देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, तो वहां से हम इंपेरियलिज्म की उत्पत्ति हुई. क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज था, इट वाज ऑटोमेटिकली डिमांडिंग, इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता, उसकी मांग भी हमारी बढ़ेगी और मार्केट भी हमें चाहिए होगा. क्योंकि अगर हमें मार्केट नहीं मिलेगा, हमें नए कंज्यूमर्स नहीं मिलेंगे, तो हमारा ये पूरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो एक श्राप बन जाएगा और वो पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा. तो वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म से ही इंपेरियलिज्म निकल करके आता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केट, और इसका सोल्यूशन कॉलोनियलिज्म के रूप में निकाला. कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी व्यवस्था जो प्रोडक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर तो रही है, लेकिन चूंकि इसमें इंपेरियलिज्म आ जा रहा है, तो जैसे जैसे इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, उपनिवेशवाद बढ़ रहा है, वो प्रोग्रेसिव से टायरनी हो जा रहा है. तो टायरेनिक एलिमेंट इसमें आ जा रहा है क्योंकि ये दो चीजों पर आधारित है. वो पहली चीज है रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट. और जब तक ये दो चीजें जुड़ी रहेंगी तब तक पूंजीवादी व्यवस्था हर हाल में शोषण ही करेगी कमजोरों का. और इस वजह से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया. और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो उसके अपने अंदर जो उसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इट्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीक, इट ऑटोमेटिकली गिव राइज टू सोशलिज्म. इसी वजह से वो सोशलिज्म को चाइल्ड ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं कि सोशलिज्म जो है वो पूंजीवाद का एक बच्चा है, और उसका बच्चा ही नहीं, उसका शत्रु भी है. क्योंकि सोशलिज्म के माध्यम सोशलिस्ट व्यवस्था जो है, समाजवादी व्यवस्था जो है, वो हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में खड़ी होगी. दैट्स व्हाट नेहरू वाज सेइंग अबाउट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. Now when we comes to nationalism, तो नेहरू नेशनलिज्म को लेकर के एक अलग किस्म का दृष्टिकोण रखते थे. उनका कहना था कि नेशनलिज्म एक बहुत अच्छी फीलिंग है, इट इज अ वेरी गुड फीलिंग, बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड इट इज एंटी फीलिंग बिकॉज इट रेस्ट ऑन द फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड एंगर टुवर्ड्स अदर नेशनल ग्रुप्स. एक राष्ट्र के राष्ट्रवाद की भावना दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रवाद की भावना में ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, और दूसरे राष्ट्र के लोगों के प्रति हमारा जो क्रोध और नफरत रहती है उस रूप में वो राष्ट्रवाद निकल करके आता है. इसलिए उसको उन्होंने एंटी फीलिंग माना. लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान समय में इस राष्ट्रवाद के भाव की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं रहेगा, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट लेके नहीं खड़े हो पाएंगे. और जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई सफलतापूर्वक नहीं कर लेंगे, तब तक हम अन्य किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते. He says that imperialism and independence दोनों एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं. कि अंग्रेज जो है वो हम पे शासन भी कर ले और हम इंडिपेंडेंट भी रहे, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती. चाहे अंग्रेज किसी तरह की नीति अपनाए, चाहे वो शुगर कोटेड पॉलिसी अपनाए और चाहे वो मार्शल लॉ के इम्पोज करने की पॉलिसी अपनाए, दोनों ही केस में पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को एक अनरिलायबल फ्रेंड और अनसेफ हिस्टोरियन भी कहा है. क्योंकि यदि इतिहासकार इस तरह की भावना से प्रभावित होकर अगर इतिहास लिखता है तो उसका इतिहास विश्वसनीय नहीं होता. ऐसा नेहरू का कहना है अपनी ग्लिम्पसेस ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने कहा। उसके बाद फर्दर वो एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दौर चल रहा था तो जो मुस्लिम जो नेशनलिज्म था वो एक नहीं था बल्कि 3 तरह का नेशनलिज्म था, मुस्लिम नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म एंड ट्रू नेशनलिज्म. नाउ हियर he is dividing nationalism on the basis of religion, and he's saying that there were 3 different roads but were running parallel due to demand of time. उसके बाद फिर हम मार्क्सवाद को देखेंगे. नेहरू ने मार्क्स की जो थ्योरी है उसको माना है. उन्होंने इतिहास की जो मार्क्स के द्वारा की गई जो आर्थिक व्याख्या है उसको भी उन्होंने माना है. और उनका जो मानने का मेन रीजन है वो कहते हैं कि मार्क्स की थ्योरी के जितने भी अलग अलग उसकी सब थ्योरीज है, जैसे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, और मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ डिटरमिनिज्म था, उन सारे सिद्धांतों को वो मानते हैं. और उसके पीछे उनका जो मेन रीजन है वो ये है कि मार्क्स जो है पहले तो बहुत ही साइंटिफिक आउटलुक देता है इस इंटरप्रिटेशन में. दूसरी चीज वो कहते हैं कि इतिहास की व्याख्या करने का और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको बताने का जो पॉलिटिकल इवेंट्स का फ्लो है उसको साइंटिफिकली समझाने का, उसके कारण बताने का जो दृष्टिकोण अन्य विचारधाराएं नहीं दे पाई वो मार्क्स दे सका. इट इज क्वाइट नियर टू सैटिस्फैक्शन. लेकिन फिर भी नेहरू कहते हैं कि वो पूरी तरह से उससे सैटिस्फाइड नहीं है. ये कुछ हद तक तो सही है अन्य विचारधाराओं के कंपैरिजन में, बट इट डज नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चन. और वो कह रहे हैं कि while other systems are groping in darkness, Marx is the only one who gives explanation to the events and the real solution. So that's how we came to know about Nehru's approach towards different isms. And we have to understand that Nehru was a person who was writing these books when nationalism was at its peak. He was a person who was playing an important role in the politics of that time, and he was also the person who was tilted towards Marxism and socialism. तो उन सारी चीजों से वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे और उसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा उनकी राइटिंग. So that's all for this video. In the next video, I'll be talking about what Nehru has to say about the different political events that is related to the freedom struggle of India. Thank you so much.